Dear sisters and brothers, the topic is computer hardware. The physical components of a computer that we can see, touch, and feel are called the hardware. A computer consists primarily of the following hardware parts. It means कंप्यूटर के भौतिक घटक या वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से निम्नलिखित हार्डवेयर भाग होते हैं। As we looking in this classification chart, computer hardware mainly categorized into two parts. First, CPU Central Processing Unit, जिसे केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है। सेकंड, पेरिफेरल्स, बाह्य या अतिरिक्त उपकरण। फर्दर, CPU हैव थ्री पार्ट्स: ए ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय और तार्किक इकाई। बी CU कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। सी MU मेमोरी यूनिट और मेन मेमोरी, संग्रहण इकाई या मुख्य स्मृति। फर्दर, पेरिफेरल्स कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स: ए इनपुट यूनिट IU निवेश इकाई। बी आउटपुट यूनिट OU प्राप्ति या प्रदाता इकाई। सी सेकेंडरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट द्वितीयक या सहायक भंडारण इकाई। नाउ वी स्टडी all these hardware parts sequentially. Now the first hardware part is CPU, Central Processing Unit. CPU is the core of computer system where all processing is done. It is divided into arithmetic and logic unit, control unit, and the primary or main memory. CPU is also called the brain of computer. It controls all the activity of computer system. CPU कंप्यूटर सिस्टम का केंद्रीय भाग है जहां सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। इसे अंकगणितीय और तार्किक इकाई ALU, नियंत्रण इकाई CU और प्राथमिक या मुख्य मेमोरी MU में विभाजित किया गया है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। Now the first part of CPU is arithmetic and logic unit. ALU is responsible for doing all the arithmetic calculations and logical comparisons. The data and instructions are sent from the input area of the memory to the ALU. The processing takes place here and the results are sent back to the memory again. The CPU uses operators like plus, minus, multiply, divide for arithmetic operations and gives numeric results. Logical comparisons always result in a true or false value. Comparisons are done using relational operators like less than equal to, greater than equal to and not equal to. सभी अंकगणितीय गणना और तार्किक तुलना ALU द्वारा करी जाती हैं। डाटा और निर्देश मेमोरी के इनपुट क्षेत्र से ALU को भेजे जाते हैं। यहाँ पर प्रसंस्करण होने के बाद परिणाम फिर से मेमोरी या स्मृति में भेजे जाते हैं। CPU अंकगणितीय कार्यों के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे ऑपरेटरों का उपयोग करता है और संख्यात्मक परिणाम देता है। तार्किक तुलनाओं का परिणाम सदैव ट्रू या फॉल्स के रूप में होता है। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का उपयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ CPU इज कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट acts like the traffic police. Its main function is to control and coordinate the flow of data and instructions between all the other parts of CPU. Neither does it hold data nor
process anything. Normally, the first program instructions is moved into control unit from the primary memory. This is a sort of manager of all operations that take place within the system. कंट्रोल यूनिट ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य सीपीयू के अन्य सभी भागों के मध्य डाटा और निर्देशों के प्रवाह को नियंत्रित करना और समन्वय या सामंजस्य स्थापित करना है। ना तो यह डाटा संभालता है और ना ही कुछ प्रक्रिया करता है। आमतौर पर पहला प्रोग्राम निर्देश प्राइमरी मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में चला जाता है। यह सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का एक प्रकार है जो सिस्टम के भीतर होता है। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ सीपीयू इज प्राइमरी और मेन मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी। द सीपीयू डायरेक्टली स्टोर्स and retrieves information from here. It is an area where the data is stored and is accessible to CPU. All data fed through the input device is stored in this area till they are ready to be processed. It holds the data that is being processed and also the intermediate result in the working area. प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू जानकारी को सीधे यहाँ स्टोर करता है और यहीं से जानकारी को प्राप्त करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ डाटा को संग्रहित किया जाता है और सीपीयू के लिए उपलब्ध है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त सभी डाटा को इस क्षेत्र में संग्रहित किया जाता है जब तक वे प्रक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह उस डाटा को रखता है जिस पर प्रक्रिया होनी है और कार्यक्षेत्र में मध्यवर्ती परिणाम को भी रखता है। नाउ द सेकंड हार्डवेयर इज पेरिफेरल्स। ए पेरिफेरल डिवाइस इज एन ऑक्सिलरी डिवाइस यूज्ड टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू एंड गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्यूटर। द टर्म पेरिफेरल डिवाइसेस refers to all hardware components that are attached to a computer and are controlled by the computer system, but they are not the core components of computer, such as the CPU or power supply unit. In other words, peripherals can also be defined as devices which can be easily removed and plugged into a computer. पेरिफेरल उपकरण एक बाह्य या सहायक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में जानकारी भरने और जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पेरिफेरल उपकरण शब्द उन सभी हार्डवेयर घटकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन वे कंप्यूटर के मुख्य घटक नहीं होते हैं, जैसे कि सीपीयू या बिजली आपूर्ति कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं। दूसरे शब्दों में बाह्य या सहायक उपकरणों को उन उपकरणों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें आसानी से हटाया जा सकता है और कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप ऑफ पेरिफेरल्स। नाउ द फर्स्ट पेरिफेरल डिवाइस इज इनपुट यूनिट। Any information or data given to the computer is called input. The device using which computer takes input is called an input device. Any input device takes inputs, converts it to binary form and then passes it on to the CPU for processing. This is because all digital computers can understand only binary data. Input data can be both data or instructions. The input devices normally seen along with all computers are keyboard and mouse, but there are special input devices like magnetic ink character reader (MICR), optical character reader (OCR), and joystick etc. कंप्यूटर को दी गई किसी भी जानकारी या डाटा को इनपुट कहा जाता है।
जिस उपकरण का उपयोग करके कंप्यूटर इनपुट लेता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कोई भी इनपुट डिवाइस इनपुट ग्रहण करके इसे बाइनरी रूप में परिवर्तित करके फिर इसे प्रक्रिया करने के लिए सीपीयू के पास भेजता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी डिजिटल कंप्यूटर केवल बाइनरी डाटा को ही समझ सकते हैं। जो डाटा इनपुट किया जाता है वह डाटा या निर्देश दोनों रूपों में हो सकता है। सभी कंप्यूटरों के साथ सामान्यतः देखे जाने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस होते हैं, लेकिन विशेष इनपुट डिवाइस भी हैं जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जिसे MICR और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसे OCR कहा जाता है। साथ ही जॉयस्टिक आदि भी प्रयोग किए जाते हैं। Now the second peripheral device is output unit. Any information or data sent out as a result from the computer is called output. The device using which computer sends output is called an output device. The output devices normally seen along with computers are the visual display unit, VDU or monitor, and the printer. There are output devices like the plotters used for specialized tasks. कंप्यूटर से परिणाम के रूप में भेजी गई किसी भी जानकारी या डाटा को आउटपुट कहा जाता है। जिस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर आउटपुट के लिए करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। सभी कंप्यूटरों के साथ सामान्यतः देखे जाने वाले आउटपुट डिवाइस विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU या मॉनिटर और प्रिंटर हैं। विशेष कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लॉटर जैसे आउटपुट डिवाइस हैं। थर्ड पेरिफेरल डिवाइस इज सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। स्टोरेज कैपेसिटी इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा can be stored and retrieved quickly and accurately. Secondary memory is used to store large amount of data and instructions permanently. This is also called backup storage. The main memory of the computer is temporary memory and has limited storage capacity. So data has to be stored separately in a secondary backup device to keep it permanently. It is not part of the main computer. Floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, pen drive, etc. are secondary storage devices. भंडारण क्षमता कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं में से एक है। ज़्यादा मात्रा में डाटा को शीघ्र और उपयुक्त रूप से संग्रहित किया जा सकता है और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीयक मेमोरी का उपयोग बड़ी मात्रा में डाटा और निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसे बैकअप स्टोरेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है और इसमें स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, इसलिए डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता होती है। यह मेमोरी कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव आदि द्वितीयक स्टोरेज डिवाइसेज हैं। Here is a block diagram of computer system. It shows all the hardware parts of computer. It shows the all functional units of computer system. That's how we studied the hardware parts of a computer system.